بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس ہوٹل میں آئے ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک عجیب سی پراسراریت مجھے محسوس ہوتی تھی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے چونک جاتا اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں پر کچھ ہے جو مجھے محسوس تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اور یہ مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن جب میں اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس آواز کے ساتھ ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں گھبراتے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا تو میں اٹھ کر دفتر سے باہر آ گیا، ہوٹل کی لابی میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا جا رہا تھا، لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ آواز مسلسل میرے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ میں اس آواز کی سمت آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن مجھے کہیں پر بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز میرے آگے بڑھنے سے اور دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں آواز کی سمت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر ہوٹل کی پہلی منزل پر آ گیا۔ اسی منزل کے کونے سے وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں پریشانی سے اس طرف بڑھتا گیا اور جیسے ہی آخری کونے پر پہنچا تو بند دروازے کے پار مجھے وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ حالانکہ میں نے یہ کمرہ کرائے پر نہیں دیا تھا، لیکن شاید کسی سٹاف نے دے دیا ہو۔ یہ سوچ کر میں دروازے کے قریب ہو گیا۔ وہ آواز ابھی بھی دروازے کے پار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کی آواز سناٹے میں دور تک گونج گئی۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ دروازہ اس طرح کھل جائے گا۔ میں اندر بڑھا اور پھر جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہاں پر ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے بھی اس کمرے میں کچھ ایسا واقعہ ہو چکا تھا جس نے ہم سب کو اپنے خوف میں لے رکھا تھا، اور اب یہاں پر یہ سب کچھ دیکھ کر میں ایک بار پھر خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ میری نگاہوں کے سامنے پوری آب و تاب سے دوڑنے لگا اور خوف نے میری حالت پتلی کر دی۔ میں بہت مایوسی کے عالم میں سڑک کے کنارے آ کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کو بے بسی سے دیکھنے لگا۔ میں نے اتنی محنت کر کے MBA میں ڈگری حاصل کی تھی۔ میری ماں نے نہ جانے کس طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اور ان کے کپڑے سی سی کر مجھے پڑھا لکھایا تھا، کیونکہ اماں کا میں اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے پیدا ہونے سے کچھ وقت پہلے ہی ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ نہ جانے اماں نے وہ وقت کیسے گزارا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اماں کی ہمت کو داد دیتا ہوں، لیکن اماں کا بیٹا ہونے کے باوجود میں ان کی طرح ہمت والا نہیں تھا۔ میں اب مایوس ہو چلا تھا اور یہ مایوسی میرے اندر پھیلتی جا رہی تھی۔ اب آج 1 سال ہو گیا تھا۔ میں جوتیاں گھسا گھسا کر تھک گیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی اور میں اب بہت مایوس ہو چکا تھا۔ اماں میری طرف پر امید نظروں سے دیکھتی، لیکن جب مجھے مایوس دیکھتی تو وہ بھی چپ کر جاتی۔ وہ بھی بیچاری کیا کرتی؟ اس نے میرے مستقبل کے حوالے سے بہت خواب دیکھے تھے، لیکن اب جب کہ میں ان خوابوں کو پانے کے بالکل قریب تھا تو مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ الٹا میں مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا۔ میں اب بھی سڑک کے کنارے بیٹھا آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، اور نہ جانے پھر کتنی دیر گزر گئی، مجھے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھا رہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر جاؤں، کیونکہ اماں کی مایوس شکل دیکھ کر میری خود کی ہمت ختم ہو جاتی تھی۔ حالانکہ میں نے یونیورسٹی سے اچھے نمبروں سے اپنی ڈگری مکمل کی تھی اور ایک نئے عزم کے ساتھ میں عملی میدان میں اترا تھا، اور مجھے امید تھی کہ بہت جلد ایک بہت اچھی نوکری مجھے مل جائے گی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے اتنی زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اب بھی دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اتنا پڑھنے کی، جبکہ نوکری تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ مجھ سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ہنر سیکھا اور آج اس ہنر کی بدولت اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں اور اپنے گھروں کا چولہا جلا رہے ہیں، جبکہ میں ڈگری ہاتھ میں لے کر لوگوں کے دفتروں میں چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ شام کے گہرے سائے ہوتے دیکھ کر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور گھر کی جانب جانے لگا۔ آج تو جیب میں واپسی کا کرایہ بھی نہیں بچا تھا، کیونکہ میرا انٹرویو 3 مختلف جگہوں پر تھا، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے مختلف بسیں بدل کر میری جیب سے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ صبح کا ناشتہ کر کے نکلا ہوا تھا اور اب رات ہونے والی تھی۔ اس وقت بھوک بھی بہت زیادہ تھی، لیکن مایوسی کی بدولت بھوک کی طرف زیادہ دھیان نہیں جا رہا تھا۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف بڑھ چکا تھا۔
यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत पर घर था। मैं बोझल कदमों के साथ बढ़ता जा रहा था और जब घर पहुंचा, अम्मा ने दरवाजा खोला तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझसे कुछ नहीं पूछा। अंदर आकर हाथ मुंह धोकर बैठ गया तो कुछ देर बाद अम्मा ने आलू का शोरबा और एक रोटी लाकर मेरे आगे रख दी और फिर मेरे सामने बैठ गई। मैं चुपचाप नवाला तोड़कर खाने लगा। अम्मा कहने लगी, फिक्र न कर मेरा बेटा, कभी ना कभी तो अल्लाह तेरी भी सुनेगा। तू देख लेना, जल्द ही तेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी और तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मुझे अपने रब पर बहुत यकीन है। अम्मा के चेहरे पर उस वक्त उम्मीद और खुशी की लहरें चमक रही थी। मैं वो देख रहा था, लेकिन मायूसी से कहने लगा, अम्मा 1 साल हो चुका है, अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली और मैं बहुत थक चुका हूं। मुझे समझ आ गई है कि यहाँ पर सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलती, इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। नौकरी के ख्वाब देखना मेरे लिए सही नहीं, और जब नौकरी मिलनी होगी तब की तब देखी जाएगी। मैंने अपना फैसला अम्मी को सुनाते हुए कहा, लेकिन अम्मा कहने लगी कि नौकरी जल्द ही मिल जाएगी, तू परेशान मत हो। मैंने खाना खा लिया था। अम्मा ने बर्तन उठाए और अंदर बढ़ गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और फिर थकावट के मारे मुझे जल्द ही नींद आ गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मेरा इरादा था कि मैं करीबी दुकान पर कुछ सेलमैन या इस तरह की नौकरी के लिए जाकर पता करता हूँ, ताकि घर का तो कुछ खर्च चल सके। यही सोचकर मैं उठकर बाहर आ गया कि इतने में मेरा मोबाइल बजा। ये मोबाइल भी मैंने जब नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया था तभी लिया था। एक आम सादा फोन था जिसमें सिर्फ सिम कार्ड ही चलता था। मैं चौंक कर फोन उठाने के लिए मेज पर झुका, क्योंकि आज तक मुझे किसी का फोन नहीं आया था। मैंने ये नंबर सिर्फ अपनी सीवी पर ही दिया हुआ था और अब जबकि बेल बजी तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। फोन उठाकर मैंने देखा तो एक कंपनी का नुमाइंदा था जो कह रहा था कि आज आप हमारी कंपनी के दफ्तर में विजिट करें, हमें आपको एक जगह पर तैनात करना है और आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफर मुंतजिर है। मैं बहुत हैरान हुआ। अब जबकि मैं नौकरी की बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुका था तो मुझे नौकरी के लिए कॉल आ गई। मैं खुशी के मारे बाहर अम्मा के पास भागा और अम्मा को सारी तफसील बताई। अम्मा भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था ना, मायूस मत हो, मेरे रब ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अम्मा ने मुझसे कहा तो मैं सर हिलाता हुआ फटाफट तैयार होने के लिए चल दिया। जैसे ही तैयार होकर निकला तो अम्मा ने नाश्ता बना कर रखा हुआ था। नाश्ता करके मैं फौरन घर से बाहर निकल गया। आज मेरी चाल ही कुछ और तरह की थी। आज मैं बहुत खुश था और मुझे इस बात का इत्मीनान था कि अब मेरी नौकरी पक्की है। मैं जैसे ही उस कंपनी के दफ्तर में पहुंचा तो थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन फिर रिसेप्शन की तरफ बढ़कर मैंने वहां से मतलूबा बंदे के कमरा नंबर के बारे में पूछा और उसकी निशानदही पर मैं वहां से उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के बाहर मैंने दस्तक दी और फिर उसके यस कहने पर अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर सलाम करने के बाद मैंने अपने आने का मुद्दा बयान किया तो उसने फौरन समझकर सर हिला दिया और मुझे बैठने को कहा और फिर अपने कुछ काम में मसरूफ हो गया। मैं उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट के बाद उसने कहा, जी तो मिस्टर अजीज, हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। चूंकि आप उस दिन नौकरी के लिए आए थे, लेकिन हमने किसी और को मुंतखब कर लिया था, लेकिन अब हमारी कंपनी ने यहाँ शहर से बाहर एक पहाड़ी इलाके में होटल खरीदा है। वो हमारा होटल शादी, ब्याह और इस तरह के इवेंट्स के लिए है और सयाहों की रिहाइश वगैरह के लिए भी वहां पर कमरे मखसूस किए गए हैं। हम वहां पर आपको नौकरी की ऑफर दे रहे हैं। आपको वहां पर उन कमरों की सुपरवाइजरी के लिए जाना होगा और होटल की मुकम्मल निगरानी करनी होगी। आपको वहां पर रिहाइश भी दी जाएगी और खाना भी होटल की तरफ से मिलेगा, जबकि आपको तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। अब आप हमें सोचकर बता दें कि आप ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं। अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर निकलवा देता हूं और आप कल से ही जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा है तो वहां पर आपका होना बहुत जरूरी है। इस कंपनी की तरफ से इतनी बड़ी ऑफर सुनकर मैं तो हैरत से दंग रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मेरा मसला अब यह था कि मैं अम्मा को अकेला यहाँ पर छोड़कर कैसे इतनी दूर चला जाऊं। मैं थोड़ा शशोपंज में मुब्तला हुआ, लेकिन फिर दिल कड़ा करके मैंने एक फैसला कर लिया और होटल की नौकरी के लिए हामी भर ली। मैंने सोचा था कि कुछ वक्त के बाद अम्मा को उधर अपने पास ही बुलवा लूंगा और अम्मा भी शायद इस बात के लिए राजी हो जाएंगी। मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेकर खुशी के मारे घर पहुंचा और अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा का चेहरा एक लम्हे के लिए बुझ गया।
کیونکہ میں کبھی اماں سے اس طرح جدا نہیں ہوا تھا، اور اب پہلی بار جب اماں سے الگ ہو کر جا رہا تھا تو انہیں بھی میری جدائی کا خیال محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ہی دن میں اپنی ساری تیاری مکمل کی اور اماں کو اداس چھوڑ کر ایک نئی منزل کی جانب چل دیا۔ یہ ہوٹل میرے گھر سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ چونکہ روز آنا جانا تو مشکل تھا، اس لیے کمپنی کی طرف سے جو رہائش ملی تھی میں نے وہیں رہنے کا ارادہ کیا۔ ہوٹل بہت بڑا تھا اور بہت عالیشان بنا ہوا تھا۔ یہ ایک قدیم عمارت تھی، شاید پہلے کسی زمانے میں کوئی اسکول یا ہسپتال ہوگا جسے جدید ہوٹل کی شکل دے دی گئی تھی، لیکن پھر بھی جب ہوٹل پر پہلی نظر پڑتی تھی تو ایک پر اسراریت سی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے بھی نظر ڈالی تو مجھے پورے جسم میں ایک کرنٹ سا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کچھ ایسا ہے جو محسوس تو ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ میں اندر بڑھ گیا، وہاں پر موجود نمائندے کو اپنے بارے میں بتایا۔ اس نے بہت خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور مجھے میرے کمرے کی طرف چھوڑ کر گیا۔ تو کچھ دیر بعد اس نے میرے لیے گرم گرم چائے کا کپ اور سینڈوچ بھجوا دیا۔ وہ کھا کر میں ذرا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور پھر 1 گھنٹے بعد ہوٹل کے وزٹ پر نکلا۔ ہوٹل میں آج کل بھی پینٹ وغیرہ کا کام چل رہا تھا اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی مرمتوں کا بھی سلسلہ جاری تھا۔ میں بہت تسلی سے سارے ہوٹل کا جائزہ لے رہا تھا اور کچھ ضروری چیزیں جو مجھے محسوس ہوئیں وہ میں نے اپنی لسٹ میں لکھ لیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں کے مینیجر سے ڈسکس کر کے انہیں بھی ہوٹل میں ارینج کرواؤں گا۔ پھر اچانک لابی کے اختتام پر مجھے ایک کمرہ بند نظر آیا۔ اس کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں بند ہے، یہاں پر رینوویشن کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کے جواب نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب یہ ہوٹل خریدا تھا تو جس سے یہ خریدا گیا تھا اس کے مالک نے کہا تھا کہ یہ کمرہ کبھی مت کھولنا، کیونکہ اس کمرے میں کچھ ایسی پر اسراریت ہے اور اس طرح کی حرکات محسوس کی گئی ہیں جو کہ خوفزدہ کر دینے والی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر ان چیزوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ اگر دوبارہ اس دروازے کو کھولا گیا تو شاید وہ دوبارہ باہر آ جائیں، اس لیے کبھی اس دروازے کو مت کھولنا۔ میں حیران رہ گیا اور اس سے کہا کہ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اب ہم ایک کمرہ ایسی تہمات کی وجہ سے بند تو نہیں کر سکتے۔ کمپنی سے بات کروں گا اور پھر دیکھتے ہی اس کا کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر میں آگے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پیچھے 2 گہری سیاہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ہوٹل میں آئے ہوئے مجھے 2 دن ہو چکے تھے اور کمپنی کی طرف سے بات کر کے میں نے اس کمرے کو بھی کھلوا لیا تھا۔ کمپنی کو بھی اپنا فائدہ عزیز تھا۔ وہ ایک غیر ضروری باتوں پر یقین کر کے اس ہوٹل کے کمرے کو بند کر کے نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس کمرے کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ اور جب کمرہ کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک مخصوص بو نے ہمارا استقبال کیا، جیسے وہاں پر کئی سالوں سے بند ہونے کی وجہ سے ایک سیلن اور نمی کی بو پیدا ہو گئی تھی۔ کمرے کی لائٹس بھی خراب تھیں۔ وہاں پر وائرنگ کا انتظام کروایا گیا اور پرانے فرنیچر کو نکال کر نیا فرنیچر رکھوایا گیا۔ مجھے تو اس کمرے میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا جیسا کہ میں نے سنا تھا، لیکن اب وہ کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور ویسے بھی اس کمرے کی بالکنی سے باہر بہت خوبصورت نظارہ نظر آتا تھا۔ ہوٹل کے افتتاح میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ اب ہوٹل میں افتتاح کی تیاریاں چل رہی تھی۔ کمپنی کے سارے عہدیداران یہاں پر آنے والے تھے اور کچھ ملک کی جانی مانی شخصیات کو بھی اس ہوٹل میں مدعو کیا گیا تھا۔ ان کو بلانے کا مقصد ہوٹل کی تشہیر تھا۔ بڑے پیمانے پر تقریب کی تیاریاں جاری تھی اور میں آج کل بہت مصروف تھا۔ میں روز اماں سے بات کرنا نہیں بھولتا تھا، کیونکہ اماں پہلی بار میرے بغیر اکیلی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ بہت اداس رہتی تھی۔ میں ان کا خیال کرتا تھا اور جب تک میں انہیں اپنے پاس نہ بلا لیتا تب تک میں روز ان سے فون پر بات کرتا۔ اماں میری ترقی پر خوش تھیں، کیونکہ جتنا زیادہ میں پہلے اپنے کام کے لیے پریشان تھا اب میں اتنا ہی خوش اور مطمئن تھا۔ ہوٹل کی افتتاح کی تاریخ اناؤنس کر دی گئی تھی اور اب ہمیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی، اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ آج صبح سے مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جو مہمان دور شہر سے آئے تھے وہ تو ہوٹل کے کمروں میں ہی رک رہے تھے، جبکہ مقامی لوگ شام کو تقریب کے وقت ہی پہنچے۔ ہوٹل کے مالک نے اس کا افتتاح کیا اور پھر سب نے گھوم پھر کر ہوٹل دیکھا۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہوا۔ آج کی رات میں بہت خوش تھا، کیونکہ میرے باس نے میری بہت زیادہ تعریف کی تھی اور وہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے ایک تنخواہ بونس دینے کا بھی کہا۔ میں خوش ہو گیا اور 2 دن وہ ہوٹل میں ہی رکے۔ ہر طرح کے انتظامات کا جائزہ لے کر وہ چلے گئے۔ اب ہوٹل کا مکمل نظام میرے ہاتھ میں تھا۔ آج بھی ہوٹل فل بک تھا۔
और दूर दूर से सयाह इसी होटल में ठहरने के लिए आ रहे थे। मैं अपने दफ्तर में बैठा सारे इंतजामात को देख रहा था, क्योंकि स्टाफ तो छुट्टी कर चुका था। सिर्फ चंद ही लोग बाकी थे जो इमरजेंसी के लिए होटल में रखे गए थे। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मैं बुकिंग वगैरह का जायजा ले रहा था और इतने में मुझे छन छन की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक उठा और अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन मेरे इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुसलसल छन छन की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं घबरा कर उठा और दफ्तर में देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं कमरे से बाहर निकला और लॉबी में इधर उधर देखने लगा। वहां पर भी कोई नहीं था, जबकि छन छन की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। मैं अपने चेहरे पर उलझन सजाए आगे बढ़ता गया। आवाज की सिमत जैसे जैसे बढ़ रहा था, आवाज वैसे वैसे आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है और उसके चलने की आवाज से छन छन की आवाज सुनाई दे रही है। मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि उस वक्त इक्का दुक्का स्टाफ ही होटल में मौजूद था। सिर्फ 3-4 लोग ही मदद के लिए रात के वक्त मौजूद होते हैं। फिर ये छन छन की आवाज कहां से आ रही थी? मैं आवाज के पीछे चलता चलता होटल की ऊपरी मंजिल पर आ गया। अब वो आवाज होटल के एक तरफ से महसूस हो रही थी। मैं उस तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके इख्तिताम पर ही वही कमरा था जो पहले बंद था और जिसे बाद में मैंने एक लग्जरी बेडरूम की शक्ल दे दी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इस आवाज का खातिमा यहां पर कैसे हो गया। वो आवाज कहां से आ रही थी? किसकी आ रही थी? मुझे एकदम बहुत खौफ महसूस हुआ, क्योंकि उस वक्त होटल की इक्का दुक्का लाइट सी जल रही थी और उस वक्त होटल बहुत पुरस्कार लग रहा था। मैं फौरन नीचे उतर आया और भागकर अपने दफ्तर में चला गया। उस वक्त मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार थे और हलक बहुत खुश्क हो गया था। मैंने जल्दी से गिलास उठाकर मुंह को लगाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गया, लेकिन अभी भी मेरी धड़कन बहुत तेज थी और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। इसी घबराहट को दूर करने के लिए मैंने बगैर सोचे समझे अम्मा को फोन में ला लिया। मेरी पहली बेल पर ही अम्मा ने फोन उठा लिया और मुझे कहने लगी, पुत्र तू ठीक है? मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे तू कोई परेशानी में है। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया कि मेरी माँ का मुझसे इतना लगाव है कि उसे दूर बैठे ही इस बात का अंदाजा हो गया कि मैं परेशान हूँ। ताहम मैंने अम्मा से अपनी कोई बात नहीं की और उनको तसल्ली देकर और इधर उधर की बातें करके फोन रख दिया। अब मैं काफी बेहतर था और मेरी घबराहट भी कम हो गई थी, लेकिन मैं जब भी उस छन छन की आवाज के बारे में सोचता और फिर उस कमरे तक उसके इख्तिताम के बारे में सोचता तो फिर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अगले दिन तक मैं इस बात को भुलाने में काफी हद तक कामयाब हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने होटल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो पता चला कि उसे तो किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दी और वो ड्यूटी पर ही मौजूद था। ताहम मैं उसे अपना वहम करार देकर अपने काम में मसरूफ हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो अभी शुरुआत है और मुझे अभी और बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। आज फिर होटल में कुछ लोग कमरा खाली करके चले गए और कुछ नए आए। उनमें से एक जोड़े को मैंने वो कोने वाली बालकनी वाला कमरा दे दिया। उन्हें वो कमरा पसंद आया था, इसी वजह से उन्होंने उसी कमरे की ख्वाहिश की। मैंने उस कमरे का रेट भी थोड़ा ज्यादा लगाया था और वो दोनों मियाँ बीवी उस पर भी राजी हो गए। उन दोनों का सामान वहां पर शिफ्ट कर दिया गया और बाकी चीजें भी उनको पहुंचा दी गई। मैं अब बाकी मामला देखने लग गया। इसी तरह रात को तकरीबन 11 बजे का वक्त तो होगा, एकदम से किसी की चीखने की आवाज आई। एक जोरदार चीख के बाद एक गहरा सन्नाटा था। मैं एकदम अपनी सीट से उछलकर कमरे से बाहर निकला और लॉबी में इधर उधर देखा। सामने ही से होटल का एक मुलाजिम चलता आ रहा था। मैंने उससे उस चीख के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि मुझे तो कोई चीख सुनाई नहीं दी थी, लेकिन मैं अब घबरा रहा था। मैंने सारा होटल फिर कर देखा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ जो कि गैर मामूली वाकया हो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर उस चीज से परेशान था और मुझे जैसे इस बात का यकीन था कि कुछ न कुछ गलत हुआ जरूर है। ऐसी चीख बहुत तड़प लिए हुए थी। ना जाने किसकी चीख थी और किसकी आवाज थी। मैं ये सोचता हुआ वापस अपने दफ्तर में आ गया, लेकिन उसके बाद सारी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं आज भी सारी रात घबराया हुआ सा रहा। ये 2 दिन के वाकयात मुझे बहुत बुरी तरह महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें सिर्फ मुझे सुनाई देती हैं। अगर ये सिर्फ मुझे सुनाई देती हैं तो आखिर मेरा क्या ताल्लुक है इन आवाजों के साथ? मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। पहले तो सोचा कि अम्मा के साथ ये बात करूं,
लेकिन फिर अम्मा की परेशानी के ख्याल से उनसे नहीं बात की, और कोई मुझे ऐसा इंसान नज़र भी नहीं आ रहा था मैं जिसके साथ ये बात करता और उससे इस मसले का हल तलब करता। अपने आप में मैं खुद के ऊपर सूरतें पढ़ पढ़ कर फूंक देता, क्योंकि ये मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार कह रही थी कि ये मसला कुछ और है। और सुबह मेरे बदतरीन खदशे की तस्दीक हो गई, क्योंकि वो कोने वाला कमरा, वहां से उस आदमी की लाश बरामद हुई थी। उसकी बीवी उसके साथ सो रही थी, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं कि उस आदमी के साथ क्या हुआ। उस आदमी के सीने में एक गहरा शगाफ था। ऐसा लग रहा था जैसा किसी ने कोई नोकीली चीज मारकर उसका दिल बंद कर दिया हो, लेकिन उस नोकीली चीज का भी कोई नामो निशान नहीं था, मगर खून बहकर सारा बेड भरा हुआ था। कमरे के नीचे भी फर्श पर खून की लकीर फैली हुई थी। उसकी बीवी ने जब अपने शौहर को सुबह इस हालत में देखा तो चीख उठी और फौरन रिसेप्शन पर कॉल करके मदद के लिए बुलाया। होटल के मुलाजमीन ने जब ये मंजर देखा तो वो खुद भी बहुत खौफजदा हुए, क्योंकि उस आदमी की आंखें और मुंह खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था वो बहुत तकलीफ में मरा है। मुझे जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस शख्स के साथ साथ मुझे अचानक ही वो रात वाली चीख याद आ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन जाए वकूआ पहुंचा और देखा तो अभी भी वहां पर एक पुरअसरारियत सी महसूस हो रही थी। न जाने ऐसा सिर्फ मुझे महसूस होता है या किसी और को भी, लेकिन मुझे तो महसूस हो रही थी। मैंने अपने हवास को काबू करते हुए उस आदमी की बीवी से पूछा कि रात को आप कितने बजे सोए थे। उसने जो वक्त बताया वो उस चीख से पहले का था। और फिर जब मैंने उसे पूछा कि आपके शौहर वो वक्त चीखे थे या चिल्लाए थे तो आपको कोई हरकत या चीख महसूस नहीं हुई, तो उसका कहना था कि मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, मैं तो सो गई थी और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनकी चीख की आवाज़ आई थी या नहीं। मैंने तो अभी इन्हें देखा है और इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ, उसने रोते हुए मुझसे कहा। तो मैं उसे तसल्ली देता हुआ आगे बढ़ गया। पुलिस को फ़ोन कर दिया गया था। पुलिस भी जाए वो कुआं पर पहुंच गई थी। हर तरह के फिंगरप्रिंट्स और दूसरे निशानात ले लिए गए थे। बॉडी को पुलिस वाले ही अपने साथ ले गए थे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये केस एक मुअम्मा बनकर रह जाएगा और कातिल का कुछ पता नहीं चलेगा। होटल के मुलाजमीन से भी पुलिस ने हर मुमकिन तहकीक की। होटल के इस हिस्से को वक्ती तौर पर सील कर दिया गया। मालिक को जैसे ही खबर मिली तो वो खुद बहुत हवास बाख्ता हो गया और मुझे डांटने लगे। मैंने उन्हें हर तसल्ली दी और कहा कि ये बात मीडिया में नहीं आएगी। उनका ख्याल था कि अगर एक बार होटल की रेपुटेशन खराब हो गई तो फिर दोबारा इस रेपुटेशन को बनाने में बहुत वक्त लगेगा, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। मुझे भी मालूम था कि एक बार इस होटल की रेपुटेशन खराब हो गई तो सारी बात मेरे ऊपर आएगी और मुझे शायद दोबारा कभी इस तरह की नौकरी न मिल सके। इसलिए मैंने मीडिया वालों को पैसे भेजकर उनका मुंह बंद कर दिया और पुलिस वालों से तफ्तीश को खुफिया रखने का कहा। मेरी दरखास्त मंजूर कर ली गई और फिर खुफिया तौर पर इस केस की हर मुमकिना तफ्तीश की गई, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चला। न जाने वो कौन था, कहां से आया था और कैसे उसे मार कर चला गया कि उसके साथ सोई हुई उसकी बीवी को भी खबर न हो सकी। इस वाक़े के बाद होटल में काफ़ी खौफो हिरास फैल गया था और यूं तो हमने इस बात को बाहर की हवा नहीं लगने दी थी, इसलिए सयाह तो इसी तरह आते रहे। इस कमरे के अलावा बाकी कमरे हम किराए पर देते थे, लेकिन होटल के मुलाजमीन बहुत ज़्यादा खौफजदा थे और अपने अपने तौर पर वो इस तरफ जाने से गुरेज ही करते थे, क्योंकि उनको अभी भी इस बात का यकीन था कि इस कमरे में कुछ ज़रूर ऐसा है जिसे पहले यहाँ पर बंद कर दिया गया था और हमने इस कमरे को खोलकर गलती की। गो कि मुझे इस कमरे की पुरअसरारियत पर यकीन नहीं था, लेकिन ये जो 2-3 वाक़यात हुए थे इन्होंने मुझे ज़रा चौंका दिया था। एक वो जो मुझे छन छन की आवाज़ सुनाई दी थी, उसका इख्तिताम भी इसी कमरे पर ही हुआ था, और दूसरा उस आदमी का कत्ल भी इसी कमरे में हुआ था। मैं इसीलिए चौंक गया था, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए थे और मैं अब काफ़ी थक चुका था, इसलिए 2 दिन की छुट्टी लेकर घर चला आया। अम्मा भी बहुत उदास थी और परेशान थी। अम्मा को अभी तो मैंने होटल में कत्ल होने वाले वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं बता देता तो अम्मा मुझे वहाँ पर एक पल भी न रहने देती और वापस आने पर असरार करती, और मैं अब ये नौकरी छोड़ने की गलती नहीं कर सकता था। अम्मा के साथ 2-3 दिन गुजारने का पता ही नहीं चला और मैं वापस अपनी नौकरी पर चला आया। यहाँ पर अब उस कत्ल की बातें काफ़ी कम हो गई थी और लोग थोड़ा थोड़ा भूलने लगे थे। पुलिस को चूंकि पहले ही कह दिया गया था, इसलिए पुलिस की तरफ से भी ये बात खुफिया थी। मैं काफ़ी मुतमईन होकर अपने काम पर लग गया
और पिछले 2 दिन के दौरान हुए कामों का जायजा लेने लगा। मुझे उस दौरान वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ, और जब मैंने घड़ी की तरफ निगाह की तो 11 बज रहे थे। मैं जो कि उस वक्त बहुत थक चुका था, इसलिए सोचा कि अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ कि एकदम फिर से एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। वही छन छन की आवाज फिर से मुझे सुनाई दे रही थी। मैं घबरा गया और फौरन उठकर इधर उधर देखा, लेकिन आज भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल कह रहा था कि आगे मत बढ़ो, लेकिन ना जाने मैं किस तरह कदम आगे बढ़ाता गया और उस आवाज के पीछे चलता गया। मैं उस आवाज के पीछे चलता चलता फिर जाकर उसी कमरे के बंद दरवाजे पर खड़ा हो गया। चूंकि वो कमरा अभी भी सील था और पुलिस ने वहां पर किसी को भी सख्ती से जाने से मना किया था, लेकिन मुझे अब भी कुछ छन छन की आवाज सुनाई दे रही थी और मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने देखा कि सारे कमरे में मोमबत्तियां सी जल रही थी और उनकी रोशनी उस माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थी। मैं खौफ के ज़ेरे असर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जगह पर मुंजमद हो गया हूं। मुझसे ना आगे बढ़ा जा रहा था और ना ही वापस पीछे जाया जा रहा था। मैं वहीं खड़े का खड़ा रह गया। उन मोमबत्तियों की रोशनी में मुझे घबराहट महसूस हो रही थी कि इतने में सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो लड़की दुल्हन के लिबास में मलबूस थी और उसने बहुत खूबसूरत मेकअप कर रखा था। वो चेहरे से बहुत खूबसूरत लग रही थी और सजी बनी हुई थी। उसके हाथों में मेहंदी का गहरा रंग चढ़ा हुआ था और उसने हल्का सा दुपट्टे को अपने चेहरे पर कर रखा था। मैं हैरत से उसे देख रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझसे पलकें भी झपकाई नहीं जा रही थी। वो चलती हुई मेरे तरफ करीब आ रही थी और मुझे छन छन की आवाज उसके पैरों और हाथों से आ रही थी। ये उसकी चूड़ियां और पायलों की आवाज थी जो मुझे सुनाई देती थी और मैं हैरानी का बुत बने उसकी तरफ देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं खौफ के मारे वहीं पर मुंजमद खड़ा था। और फिर हक लाए हुए अंदाज में मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने एकदम अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं दुल्हन हूं। ये शादी को भी कुछ दिन ही हुए हैं और मैं यहाँ पर अपने हनीमून पर आई हूं। उसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, लेकिन मुझे मालूम था कि मैंने ये कमरा किसी को नहीं दिया और यहाँ पर पुलिस की तरफ से सील लगाई गई थी, तो फिर यहाँ कहाँ से आ गई। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, तो वो कहने लगी, मेरा शौहर वो तो मर गया। उसने इतने बेसाख्ता अंदाज में कहा कि मैं खौफ के मारे थर्रा उठा। मैंने उससे कहा कि फिर तुम हनीमून पर किसके साथ आई हो, तो वो कहने लगी, अपने शौहर के साथ आई थी। उसकी बातें मुझे उलझा रही थी और मैं खौफजदा हो रहा था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारा शौहर तो मर गया है, तो फिर हनीमून पर कैसे उसके साथ आ सकती हैं। मैंने उससे पूछा तो एकदम उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर कहने लगी, मैं उसी के साथ तो हनीमून पर आई थी, लेकिन उसने मुझे मार दिया और मेरा सारा जेवर और गहने और मेरे पैसे लेकर यहां से चला गया, ना जाने कहां गया। उसने अजीब दुख भरे लहजे से कहा तो मेरे जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ उठी। मैंने फिर उससे पूछा कि अगर तुम मुझे अपने शौहर के बारे में और अपने बारे में कुछ बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर कहने लगी, सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही मैं अपने शौहर से अपना बदला ले सकी और अब मैं बहुत खुश हूं। उसकी बात ने मुझे एक बार फिर उलझा दिया और मैंने उससे पूछा कि वो कैसे, क्या तुम मुझे तफसील से बता सकती हो। मैं अब भी दरवाजे के पास ही खड़ा था और मेरे पीछे दरवाजा बंद था और वो दुल्हन के लिबास में सामने ही मौजूद थी। और फिर कहने लगी कि मैं एक बहुत मासूम और सादा सी लड़की होती थी। मैं जैसे ही 18 साल की हुई तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। हालांकि मैंने उन्हें बहुत मना किया और कहा कि अभी मुझे पढ़ने दें, लेकिन वो कहने लगी कि तुम्हारे जो भी शौक हैं अब शादी के बाद पूरे करना। मैं अब तुम्हें रुखसत कर देना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, न जाने मैं कब तक जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने घर बार कर देख कर जाना चाहती हूँ। अम्मा ने बहुत सारे जज्बाती हरबे अपना कर मुझे मना लिया और फिर एक मुनासिब सा रिश्ता देखकर अम्मा ने मेरी शादी फिक्स करने में देर न की। अम्मा की जिद के आगे मैं भी मजबूर हो गई थी, जबकि मेरी शादी का 1% भी दिल नहीं था और यूं डेट फिक्स होते ही घर में शादी की तैयारियां एकदम से शुरू हो गई। अम्मा उन दिनों में बहुत खुश थी। मैंने उन्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था, इसलिए अम्मा की खुशी को देखते हुए मैं भी खुश थी और यूं जल्द ही मेरी शादी हो गई। रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई।
3 दिन के बाद ही हमारी हनीमून की टिकटें बुक थी और हम शुमाली इलाका जात में सैर के लिए चले आए। मेरे शौहर ने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी साथ रखने का कहा। उनका कहना था कि अच्छे तरीके से तैयार होकर रहना, और वहां पर मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, हमें उनके पास भी जाना है। मैंने उसी हिसाब से अपनी तैयारी की और अपनी शादी का जेवर भी साथ रख लिया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यह मेरी बदकिस्मती होगी और मेरी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। हम हनीमून पर निकल आए और इसी होटल में क़याम किया। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि उसी रात ही मेरे शौहर ने शायद नशा किया हुआ था, और जब मैंने उससे इस बारे में दरियाफ्त किया और पूछा तो वो गुस्से में पागल हो गया और उसने पहले तो मुझे जोरदार थप्पड़ मारे, और फिर जब मैं नीचे गिर गई तो मेरे ऊपर बैठकर उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। मैं तड़पती रही, मेरी आंखें बाहर को निकल आई थी। मैंने अपने बचाव के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन ना जाने वो नशे में इतना अंधा कैसे हो गया कि उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ और उसने मेरा कत्ल ही कर दिया, और मैं इसी कमरे में बंद रह गई। वो मेरा सब कुछ लेकर चला गया। उसने अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश की और अपने घर वालों को जाकर यह कह दिया कि मैं वहां पर किसी के साथ भाग गई हूं। मेरी माँ लोगों से नजरें चुराती फिरती रही और वो अपने घर वालों के साथ मिलकर मेरे ऊपर तोहमत और बहतान लगाता रहा। मैं सब कुछ देख रही थी और कुछ कर नहीं सकती थी। इतने बरस इसी बात को गुजर गए और फिर इस इमारत को बेच दिया गया और यहाँ पर नए मालिकान आ गए। मैं अब भी इसी कमरे में मौजूद थी। ना जाने यहाँ के लोगों को कैसे खबर मिल गई कि उन्होंने मेरे बारे में गलत बातें मशहूर कर दी। हालांकि मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्हें मुझसे खौफ महसूस होता था, तो मैं क्या कर सकती थी। उन्होंने मेरे लिए गलत बातें क्या मशहूर की, लोगों ने यहाँ पर आना ही छोड़ दिया। और फिर जब नए मालिकान यहाँ पर आए और इस कमरे को नए सिरे से खोलकर सजाया गया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरा ठिकाना बदल जाएगा और मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं वहीं पर मौजूद रही। मैं मुंतजिर थी कि शायद कभी तो मेरा शौहर आएगा यहाँ पर, और एक दिन ये हो ही गया और तुम्हारी बदौलत उसे वही कमरा मिला जहां पर मैं मौजूद थी। अब मैंने उसी रात अपना बदला ले लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले मैंने उसे अपना आप दिखाया था और मुझे इस तरह देखकर खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन मैंने भी उस पर कोई रहम नहीं किया, जिस तरह उसने मुझ पर कोई रहम नहीं किया था। मेरा बदला पूरा हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताकर यहां से जाना चाहती थी कि अब यह कमरा खाली है और तुम आराम से इसे किराए पर दे सकते हो। अब यहां पर कोई नहीं आएगा और ना ही कोई तुम्हें तंग करेगा। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो मैं हमदर्दी से उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि तुमने कितने बरस इस बदले के इंतजार में गुजार दिए, और अब जबकि तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया तो तुम यहां से जा रही हो। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहना चाहता हूं कि अगर तुम वो बदला ना भी लेती और अल्लाह पर यह मामला छोड़ देती तो शायद आखिरत में उसे उसका ज्यादा हिसाब देना पड़ता। लेकिन तुमने ये मामला अपने हाथ में ले लिया और अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, इसलिए अब शायद आखिरत में उसे इस तरह अजाब न मिले। मैंने अपनी बात मुकम्मल की तो मेरी बात के जवाब में उसके चेहरे पर अजीब सी सोचें और गुस्सा था। एक लम्हे के लिए मुझे उससे खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर मैं संभल गया। वो कुछ देर वहीं पर खड़ी रही और फिर एकदम धुआं बनकर वहां से चली गई। मैंने चंद गहरे सांस लिए। उसके जाते ही कमरे से वो मोमबत्तियां भी गायब हो चुकी थी और कमरा मामूल की तरह लग रहा था। उसके बाद मैं काफी देर उस कमरे में खड़ा रहा, लेकिन अब वहां पर कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था जैसा पहले होता था। मैं बहुत अफसुर्दा दिली से वापस अपने कमरे में चला आया। रास्ते में मुझे होटल का एक मुलाजिम मिला तो उसने मुझे उस कमरे से निकलते हुए देख लिया था। मुझसे कहने लगा, सर आप इस कमरे में क्यों गए हैं? आपको पता भी है कि पुलिस ने इस कमरे को सील किया है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो कहानी मैं उसे सुनाता वो उस पर कभी यकीन न करता। इसलिए चुपचाप अपने कमरे में आकर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना सर पीछे गिरा लिया और चंद गहरे गहरे सांस लेने लगा। इस सारे वाकयात ने मेरे आसाब के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन वाकयात का ताल्लुक इस तरह होगा। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा था। जिंदगी में पहली बार इस तरह के वाकयात को सुना था और खुद भोगता था, इसलिए उस वक्त मेरे आसाब बुरी तरह से चीख रहे थे। मैं कुछ देर इसी तरह बैठकर खुद को रिलैक्स करता रहा और फिर उठकर कमरे में जाने लगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी और वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे सारी रात गुजार दी। अगले दिन पुलिस को मैंने उस कमरे को क्लियर करने का कह दिया। पुलिस ने भी कमरे से जरूरी शवाहिद लेकर उसे क्लियर कर दिया। अब मुझे मालूम था कि मैं इस कमरे को किराए पर चढ़ा सकता था, लेकिन न जाने क्यों
जब भी कोई कमरा लेने के लिए आता तो मैं उसे बाकी कमरे ज़रूर दिखाता, लेकिन उस कमरे की तरफ मैं लेकर नहीं जाता। मुझे आज भी ऐसा महसूस होता था जैसे उस कमरे के ऊपर उस लड़की का हक है और वहां पर कोई और जाएगा तो शायद उस लड़की को अच्छा न लगे। हालांकि उसने मुझसे कहा था कि वो यहाँ से जा रही है, लेकिन मैं फिर भी उस कमरे में किसी को ठहराने पर राजी नहीं था और उसकी बाकायदा सफाई करवा के उसे बंद करवा दिया था। इसके बाद दोबारा मुझे वो लड़की कभी दिखाई नहीं दी, ना ही मुझे चन चन की आवाज़ सुनाई दी और ना ही दोबारा होटल में ऐसा कोई गैर मामूली वाक़या हुआ। उस कत्ल वाले वाक़यात को भी आवाम भूल चुकी थी और दोबारा कभी उसका जिक्र भी नहीं हुआ। पुलिस की फाइल में नामालूम शख्स के खिलाफ केस दर्ज था, लेकिन चूंकि उसकी पैरवी कोई भी नहीं कर रहा था इसलिए वो भी फाइलों के नीचे दब गया। लेकिन मैं आज भी 5 साल के बाद भी जब उस कमरे के दरवाजे के आगे से गुजरता हूं तो मुझे वो लड़की बेसाख्ता याद आ जाती है और उसके साथ ज्यादती पर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर अम्मा के पास चला आया था। अम्मा मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा इतनी जल्दी चक्कर लगाऊंगा, लेकिन होटल में हुए वाकयात ने मुझे बहुत ज्यादा डराया था। इस वजह से मैं कुछ दिन आराम करके वापस अपनी ड्यूटी पर जाना चाहता था। अम्मा को मैंने वहां पर होने वाले वाकयात के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इस तरह वो बहुत परेशान हो जाती और मुझे भी वहां जाने से मना कर देती। लेकिन अब की बार अम्मा को भी मेरी शादी का शौक चढ़ा था और वो मुझसे शादी के बारे में बात करने लगी, जबकि शादी का नाम सुनते ही मेरी निगाहों के सामने दुल्हन बनी उस लड़की का चेहरा आ गया और मैंने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया और कहा कि मुझे भी शादी नहीं करना। अभी मेरी नई नई नौकरी है, मुझे कुछ अरसा उस नौकरी में तजुर्बा हासिल करना है और फिर मैं शादी करके जिम्मेदारियों में घिर जाऊंगा और इस तरह अपनी नौकरी पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अभी आप शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। लेकिन अम्मा बज़िद थी और मैंने फिलहाल उन्हें यही कहकर टाल दिया था कि आप कोई लड़की देखें, उसके बाद देखेंगे। अब की बार मैं अम्मा को भी अपने साथ ही ले आया था, क्योंकि वो मेरे बगैर बहुत अकेली और उदास हो जाती थी। गो कि अम्मा मेरे इस फैसले पर खुश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ चली आई। लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें यह फिजा और माहौल बहुत अच्छे लगे और वो यहाँ पर आकर काफ़ी खुश हो गई और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश था। गो कि इस वाक़े को अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था और मैं अपनी बीवी और बच्चों में और अपनी ज़िंदगी में मुतमईन और खुश हूँ। होटल की नौकरी में मुझे तरक्की मिल गई है और तनख्वाह में भी डबल इजाफा हो गया है। लेकिन फिर भी अब भी कभी मुझे किसी की भी चन चन की आवाज़ सुनाई दे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं एकदम घबरा जाता हूँ। अपनी बीवी की चूड़ियों की आवाज़ की चन चन भी मुझे नागवार गुजरती है और आज भी आवाज़ मुझे खौफजदा कर देती है। मैं घबराहट में उसे चूड़ियाँ उतारने का कह देता हूँ और वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए उन चूड़ियों को उतार देती है। उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मैं उसे ये क्यों कहता हूँ। उसे यही लगता है कि मुझे चूड़ियाँ पसंद नहीं, लेकिन मैं अपने अंदर का खौफ कभी उसके साथ शेयर नहीं कर सका और शायद कभी कर भी ना सकूं। वैसे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल शख्स हूं, लेकिन उस एक मामले में आज भी मैं खौफजदा हो जाता हूं और फिर कई दिन तक बेचैन रहता हूं। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।